generate it consciously. They are in control of their Hmm. anger. They know that this is required at this moment to bring about good in the world, and Hmm. it is karmically right time for me to be angry. It's always that they are monitoring their own body, thought, and emotions, and they are soul aware. Hmm. So body, thought, emotion Right. is a different aspect. Soul is a different. So their soul is controlling their behavior. And abhi mujhe, like in a mechanical way, like we move a Hmm. robot. I have to be angry now. Now I have to set a lesson. Now I have to again go back and relax. So Hmm. being God, Right. they can do that, and I guess they are in control of it. Hmm. So, okay, one reason ये हो सकता है, as in Vedanta, one line says, use your temper, don't lose your temper. कि गुस्से को यूज करो, गुस्सा हो मत. कहते हैं ना, गुस्से को यूज करो, गुस्सा हो मत. ऐसा. ओके, वन रीजन कुड बी दिस. क्योंकि देखो, सेल्फ रियलाइजेशन या भगवान बनना या भगवान के पाथ पे होना, ये इंटरनल चीज है. बट जी रहे तो हम वही लाइफ में है, उसी दुनिया में रहना है हमको. ऐसा. तो गुड एक्सप्लेनेशन एक तो ये है जो पारोमिता बोले. और क्या हो सकता है? कुछ कुछ सेजेस तो गुस्से के लिए ही जाने जाते थे, उनसे डरते थे सारे लोग. और कुछ लॉर्ड बुद्धा जैसे थे जिनको गुस्सा नहीं आता था. तो यहाँ क्या अपन समझ सकते हैं? How I read the whole thing is like these are all mythological characters. Now, when you do bhakti yoga, some people are actually emotionally connected. So when you do a, राइट. they are so they don't do jnana yoga, they do bhakti yoga. हाँ. Now, to explain spirituality to people who believe in bhakti yoga, you have to give every temperaments of God so that you can relate them with your own life. What is religion? As we were discussing, it is Yes. actually it is relegate. Matlab it is union with your own self. Now, people who believe in mythological things, if you try and explain them logically, they will not agree or trust. If you have to actually make them believe, you have to give them mythological gods and goddesses. And when you create a story, you have to actually create it which will relate to your day-to-day life. डे टू डे लाइफ. हाँ. So that in every mood of Shiv Bhagavan will actually tell you some story, some learning. Finally, it is all learning. And then the trust and belief of Brahman. Finally, you are actually trying to, what are you trying to do? You are trying to find your own self and trying to get reunited with Brahman. So it is a method of bhakti yoga by which you are trying to get reunionized with the with Brahman. But what people do is people try to only read one aspect of it. Shivji bhi to Shivji also used to actually get intoxicated. So why can't I get intoxicated? हाँ. Okay, so people try to actually get one part of it who suits them in their life, but they don't read at it, look at it holistically. So the होलिस्टिकली. anger is actually one part of it, as he rightly said. But if you look at him holistically, his character, if you go through his journey, he will tell you the way of life, and that is nothing ओके. but Bhakti Yoga. या. ओके. गुड थिंकिंग. और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ दिवेश. हम्म. 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 उनमें भी है. ओके. राइट. तो जस्ट एक चीज ऐड करने के लिए, शिशिर जी, हम लोग जो प्रारब्ध वासना का कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, कि वी ऑल हैव ऑलरेडी कम, हम सब कुछ ना कुछ वे ऑफ लाइफ, थॉट ऑफ लाइफ, ये सब लेके आते हैं. प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, एक बैगेज लेके आते हैं. तो द स्क्रिप्चर्स हेल्प अस टू गेट क्लियर ऑफ फुल बैगेज. बट हम जब जी रहे हैं उसके बाद भी, एनलाइटन के बाद, तो वो जो बैगेज ऑलरेडी पहले लाया था, वो अलग अलग तरीकों में एग्जॉस्ट होता है.
So there are sages who are self-realized, लेकिन they were already having that prarabdha of being a short-tempered guy. So that slowly has still exhausting, you know, उसको अभी तक पूरा वो निकला नहीं है. कोई सेज होता है जो सेज दुर्वासा जैसे बोलते हैं कि सेज दुर्वासा को खाने का बहुत आदत था. तो ही हैड आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो उनका खाना पे बहुत ज्यादा ध्यान था सेज दुर्वासा. तो प्रारब्ध जो रहेगा वो बाहर आते रहेगा. बट इंटरेस्टिंगली ये सेजेस और ये भगवान लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू यूज इट फॉर द सिचुएशन मेनली. सी आई विल टेल यू वन वियर्ड स्टोरी. वंस इट हैपेंड इन एकेडमी. आज शीतल जी पहली बार आई है, वो सुनेंगी तो शायद नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगी. लेकिन क्या हो गया, एक बार ना एक गार्डन का माली he came and did pranams to Swami ji when Swami ji was coming after class to the bungalow. और प्रणाम किया एंड स्वामी जी जस्ट आस्क्ड हिम ना, कुछ चाहिए क्या, ऐसा लाइक प्यार से पूछा. तो वो माली बोलता है, धोती धोती चाहिए, एक धोती. यू विल नॉट बिलीव, स्वामी जी ओपनड हिज धोती देयर इटसेल्फ, gave that dhoti to him, and he went like that in the bungalow. And the main student जिसने बंगलो का दरवाजा खोला, वो उधर आधी फेंट ही होने वाली थी, क्योंकि उसने स्वामी जी को देखा सिर्फ कुर्ता और माला, धोती नहीं थी. And he went to his room. So we can't conceive ये क्या है, कोई सुनेगा तो बोलेगा कि ये क्या है. So these masters, they have their own way of putting things, because उनको है ना सामने वाले को exactly क्या चाहिए वो ध्यान में आता है. तो कोई कोई रहता है जिसको पता रहता है कि इसको सामने वाले को गुस्सा ही चाहिए, तो दे विल गिव फुल्ली एंगर. सामने वाले को सिर्फ प्यार ही प्यार चाहिए तो दे विल गिव फुल लव. किसी को मिक्सचर चाहिए तो मिक्सचर दे देंगे. तो उस दिन उनकी धोती. तो हमको ना स्वामी जी हमेशा सिखाते थे कि नेवर मिक्स अ पर्सन्स लाइफस्टाइल विद द नॉलेज. कोई भी टीचर या मास्टर की लाइफस्टाइल कॉपी करना मत सोचना कभी. वो जो नॉलेज बोल रहे हैं उसको तुम ट्राई करो, क्योंकि उसकी भी लाइफस्टाइल और वो नॉलेज में फर्क हो सकता है. ऐसा. तो यस, वी हैव दिस थिंग्स. हाँ, हाँ, करेक्ट. तो जैसे देखो, बहुत सारे टाइप के लॉयर्स है, बहुत सारे टाइप के वकील है, बहुत सारे टाइप के वेलनेस वाले कोच आ गए, सब आ गए. पर आपको जो डॉक्टर, लॉयर, कोच सुहाता है, गिव्स दैट, हाउ टू से, fulfillment, then you stick to that guy, right, or that institution. Now in them also you try to be in the essential part, which is knowledge. जैसे देखो, कुछ स्टूडेंट्स जब एकेडमी आते हैं ना, कुछ लोग विजिटर्स भी, दे गेट इनटू ऑल द नॉन एसेंशियल ऑफ द एकेडमी पार्ट. ये बिल्डिंग ऐसी है, वो बंदा ऐसा है, उसके लाइफ में ऐसा हुआ था, इसका ऐसा हुआ था. वो बीच का मेन चीज एसेंस छोड़ देते हैं. तो टू द एक्सटेंट हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होएगा, वो एक्सटेंट से हम मेन चीज पकड़ के रखेंगे, और we will know whom to choose from the variety of teachers, lawyers, doctors, anything ऐसा. वो है. लास्ट शिशिर जी, ये जो चीज है ना गुस्से वाली, ये इसलिए भी दिखाई जाती है कि हम सब ने अपने आप को हम्बल रखे कि भले ही हम 20 साल अगर वेदांता पढ़ रहे हैं या 2 साल पढ़ रहे हैं, ये जो इमोशन है हमारे ना, कभी भी बाहर आ सकता है. तो वन इज दैट कि विश्वामित्रा का जो दिखाते हैं कि विश्वामित्रा इतनी तपस्या कर रहे थे और फिर वो एक मोहिनी के लिए वो टेम्प्ट हो गए. तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने आप को ईगो में सुप्रीम नहीं समझू. एनी डे आई ऑल्सो कैन स्लिप, सो बेटर टू बी इन टच विद नॉलेज. ऐसा बस. गुड क्वेश्चन. तो राइट, वील कम टू द टेक्स्ट बुक. दीपाली जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके, ठीक है. तो हम लोग 6th अध्याय में हैं. हम लोग ने लास्ट वीक तीसरे श्लोक तक किया था. तो किसी को पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड श्लोक में से कुछ पूछना है या बताना है बिफोर वी स्टार्ट ऑन द 4th?
हाँ पारोमिता। Very simple question. Forever confused. ये वासना वर्ड जो है उसको प्यार से इंग्लिश में डिफाइन करेंगे कैसे, और संकल्प को प्यार से इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में वासना वुड बी समथिंग दैट इज अ डीप ड्रिवन, डीप इनसाइड जो टेंडेंसीज या डिजायर्स है जो हमें पता नहीं है, सबकॉन्शियस के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक से बाहर आते हैं, लाइक दिस एंगर इट में बी, और डिजायर फॉर मे बी आइसक्रीम और सम फूड और समथिंग, and we don't know, we get stimulated, and that is what the advertising agencies do, that तो ad देते बर्गर का, तो मन करता है बर्गर खा लूं, पता भी नहीं चला, चले गए बर्गर की दुकान, खा ली, तो इतने एड्स देख लिए, तो that is the वासना. And I mean what I am understanding as संकल्प is संकल्प लिया कि ये नहीं करूंगी, ये उपवास करना है तो आज उपवास का खाना. संकल्प, I'm giving example of food only. संकल्प is what? Sankalpa is a determined obsession. As you had mentioned that word obsession, please clarify. How is Sankalpa an obsession? Is it good or bad? And how should we understand what is Vasana, what is Sankalpa? Otherwise, I am fully confused. No, it's okay. So Vasana, simple one word में, it is the seed. Inherent nature. Now, if there is a mango seed, what will come out of it? Which tree? Mango, right? तो जिसकी जो वासना, उसको उस हिसाब से वो टाइप के विचार आएंगे. तो इफ यू आर इनटू बिजनेस एंड बिजनेस के वासना है, मतलब आपके अंदर का सीड इज अबाउट ऑल अबाउट बिजनेस. सो भगवत गीता बोलो या स्टील बोलो या कुछ भी बोलो, एवरीथिंग थॉट्स विद देम रिलेटेड टू बिजनेस. अलग अलग जगह अलग अलग टाइप में यूज होता है. बेसिकली संकल्प हम जो समझते हैं हम लोग जनरली, वो संकल्प इज दैट विच यू टेक अ वाव, यू थिंक कि मेरे को ये करना है, ठीक है. अभी वो क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर मान लो मेरी वासना है हर टाइम पैसे की सोचना, तो मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे को अभी पैसा नहीं, मेरे को कुछ और सोचना है लाइफ में अच्छा. लेकिन बार बार थॉट्स आएंगे पैसे के, क्योंकि मेरी वासना पैसे की है. मैं उस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकता, वो ये वासना लेके जन्म हुआ है उसका. तो संकल्प इंसान ही ले सकता है, कोई जानवर संकल्प नहीं ले सकता है कि आई शुड बिकम अ हॉर्स फ्रॉम अ डोंकी. बट अ ह्यूमन कैन थिंक कि हाँ, मैं गधे के जैसे सोचते रहता हूँ, मेरे को शेर के जैसे सोचना चाहिए. ऐसा संकल्प ले सकते हैं. नाउ संकल्प हैज अदर मीनिंग्स ऑल्सो. जैसे ये 4th वर्स जो आज करेंगे, उसमें संकल्प का मीनिंग है थॉट्स. उस कॉन्टेक्स्ट में जिसकी जो वासना, उस टाइप उसके थॉट्स आएंगे. तो अगर किसी के अंदर फूड की वासना है नहीं या बहुत मिनिमल है, उसको थॉट्स कम आएंगे फूड के, और कितना भी एडवर्टाइजमेंट हो आसपास, उसके नजर में नहीं आएगा. इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे वेदांता होता है मेरे शहर में, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, क्योंकि तब तक उनके थॉट्स में वो आहे नहीं था. ऐसा है. तो दिस इज दैट वासना मीन्स सीड, and from that germinates those type of thoughts, sankalpa. ऐसा. Then what is prakriti? What is the difference between prakriti and vasana? Nothing. So in some context, prakriti means nature. It is another word for vasana. तो कहीं कहीं बोलते हैं ना कि इसकी प्रकृति वो है, इसका नेचर वो है. That means vasanas. प्रारब्धिस, तो हमारे पास मान लो प्रारब्धिस, मैं बोलता हूँ हमारे पास मान लो 1000 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए लेके मैं गया किसी पिकनिक पे. तो प्रारब्ध इज दैट 100 रुपया फ्रॉम माय 1000 रुपया. तो व्हेन वी से प्रारब्ध वासना, दैट मीन्स that current lot of vasanas which I have taken and come out of
to this world. Prarabdha, in short, you can say the existing lot is prarabdha. ऐसा. कंफ्यूज हो दिव्येश? हाँ, नहीं तो प्रारब्ध का मीनिंग पहले है कि जो मैं लेकर आया. मैं 100 रुपए लेके आया ना 1000 में से, वो प्रारब्ध हो गया पहले. अभी ऐड होगा माइनस हो गया वो अलग. No, not previous. From my total money, 1000 रुपए मेरे पास टोटल है संचिता. From that I took 100 and came out. That is prarabdha. नहीं, before this janam anything. हाँ, overall संचिता means total. ऐसा. आगामी मीन्स आगामी कर्म कुछ बोलते हैं, संचित आगामी प्रारब्ध बोलते हैं ना, तो आगामी मतलब whatever is coming about, whatever we are creating the karma, that will be present day, वही है क्या आगामी? I have not heard this word in this context, so I'll have to look it up. I don't know. Okay, sorry, because I thought that there were 3 types of karma: sanchit, prarabdha, and third one is you are creating every minute, present day. क्रिएट तो करते रहते हैं जैसे हम इस हाँ, दुनिया उसी का नाम में शायद क्रिएटिंग, बट द वर्ड मे बी कुड बी. I'll have to look it up. Some lady in my society had mentioned, so it remained in my mind. ठीक है ना, तो ये हफ्ते हम ढूंढेंगे इसका मीनिंग. ठीक है. So that means prarabdha is a subset of sanchita. जो संचय किया मैंने. Yes. It's a subset of sanchita. And then in that case, जो संचय मैंने किया, that is equal to वासना, equal to prakriti. नहीं, संचय किया मतलब क्या? संचिता आप जो बोल रहे हो उसका सबसेट तो आपका प्रारब्ध है. मैं मतलब फ्रॉम माय प्रीवियस लाइफ आई हैव एक्चुअली मैंने लेके आया, एक्यूमुलेट किया मैंने उसको. करेक्ट, वो संचिता हो गया. संचिता हो गया. that is equal to then वासना और प्रकृति, whatever those are synonymous. So let's go step by step. संचिता इज योर टोटल इच्छाएं, ठीक है, टोटल वॉट एवर यू हैव एक्यूमुलेटेड. ना उसमें से क्या होता है ना, कुछ इच्छाओं को इमीडिएट एक्सप्रेशन चाहिए, उसको लेके आते अपन, उसको बोलते प्रारब्ध. अच्छा, ठीक है. वो लेके मैं आ गया. अब उसमें से जिस भी टाइप की इच्छा मैं लेके आया हूँ उसको वासना बोला जाता है. नहीं, सॉरी, वासना कैन यू रिपीट दैट? वासना. कि मेरे पास टोटल 1000 रुपए है, संचिता हो गया. अब मैं किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं 100 रुपए लेके आया, वो हो गया प्रारब्ध मेरा. अब वो जो भी उसमें 100 रुपए में जो भी टाइप में लेकर आया हूँ ना, उसको अपन वासना बोलते हैं. मतलब दैट इज माई प्रकृति, माई नेचर. ओके. ऐसा. हाँ, और मैं बिहेव उस वे में करूंगा. 1 मिनट पहले शिशिर जी कुछ बोल रहे थे, फिर शरद जी, फिर वृंदा जी. हाँ. मित्र जी, मे बी आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग यू, बट गुड. हाँ, तो एक्चुअली मैं जब ये पढ़ रहा था, तो जो ट्रीटीज है, जब पढ़ रहा था, ट्रीटीज पढ़ रहा था, तो मुझे जो समझ में आया, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, एब्सोल्युटली नो इश्यूज. नहीं, कोई नहीं. हाँ, कि जो हमारे मतलब जन्म के दौरान मैं पूर्व जन्म से जो अनफुलफिल्ड था वो लेके मेरा जन्म हुआ, सो दैट बिकम्स माय प्रारब्ध. सो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन आज के दिन में नहीं है. नाउ ड्यूरिंग माय लाइफ मैं उसमें ऐड करते जाता हूँ. देन दैट इज द संचित. सो मेरा जो पूरा वासना है, इसका 2 कंपोनेंट है. एक प्रारब्ध जो मुझे पहले से मिला हुआ है, जिसको मैं एग्जॉस्ट करूंगा ड्यूरिंग माय दिस लाइफ टाइम, एंड कुछ है जो आई एम एक्वायरिंग ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम. एक्वायरिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दिस इज संचिता. तो ये 2 कंपोनेंट हो गए, एक कुल मिला के इज माय फुल वासना. हाँ, सो दिस हैज बीन माय अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट. तो इसमें बस ट्वीक क्या है, एक यस कि जो भी अनफुलफिल्ड रह गया था उस वजह से जन्म हो रहा है, राइट. लेकिन वो अनफुलफिल्ड में भी ना, जो भी इमीडिएट एक्सप्रेशन चाहिए जिसको, अच्छा, उसको लेके ही आप आओगे, उसको प्रारब्ध बोलते हैं. मान लो मेरी 100 इच्छाएं, मैं गया किसी ट्रिप पे, मेरी 4 चीजें रह गई.
मैं वापस जाऊंगा तो वो चारों में भी जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करूंगा ना, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको लेके आता हूँ। तो वो इमीडिएट एक्सप्रेशन जिसको इम्पोर्टेंस चाहिए वो प्रारब्ध वासना हो गई। अब वो लेके इंसान आता है, यू आर करेक्ट, अनफुलफिल्ड रह गया ना, वो जुड़ जाता है संचिता में, टोटल हो जाता है वो। अब उसमें से कॉम्प्लेक्स में जो भी मेरे को इमीडिएट डिजायर पूरी करनी है वो लेके मैं इस दुनिया में आऊंगा नेक्स्ट जन्म। अब वो 10 वासना हो सकती है या 100 हो सकती है, वी डोंट नो। तो वो हो गई प्रारब्ध। अभी आप जो बोले सेकेंड स्टेज कि ये करंट लाइफ टाइम में मैं और इच्छाएं पैदा करूंगा, वो भी क्या होता है ना, वो आपके संचित में जुड़ जाती है टोटल। अगेन फिर से क्या होएगा, जगलिंग होएगा, जिसको भी इम्पोर्टेंट जो भी मेरे को है वो लेके मैं नेक्स्ट लाइफ में आऊंगा, ये चलते रहता है। अभी लास्ट चीज समझो, थर्ड कॉम्पोनेंट। थर्ड कॉम्पोनेंट क्या है कि इन दिस करंट लाइफ टाइम अगर आप साधना करते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हो, तो आपका संचित जो टोटल बबल है ना वो खत्म होता है। वो खत्म होता है, प्लस आप न्यू वासना, न्यू इच्छाएं नहीं पैदा करोगे। ठीक है, तो अब कौन बच गया? कौन बच गया? कौन सी वासना बच गई? प्रारब्ध। प्रारब्ध बच गई, जो लेके आया था मैं। तो वो इंसान को एग्जॉस्ट ही करनी पड़ती है इस जन्म में। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन के बाद भी अलग अलग मास्टर अलग अलग वे में बिहेव करते, क्योंकि वो प्रारब्ध ऑलरेडी वो लेके आए हुए हैं। तो ये थर्ड कंपोनेंट है अभी इसका। डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट। नहीं, थोड़ा थोड़ा विल वो हो जाएगा क्लियर। बहुत सुंदर बोलना चाहते एक्सप्लेनेशन, हैं? थैंक यू। Oh, no. इतना कंफ्यूजन था, बहुत सारा क्लैरिटी, थैंक यू सो मच। सुमित, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, आगे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन वही मैं बात करता हूँ। देखिए, जस्ट बिफोर ही स्टार्ट, निखिल जी आप बोल रहे थे कि आपको कोई स्टोरी चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए। हाँ, राइट। लुक एट वेयर इट इज गोइंग नाउ। वेयर इट इज गोइंग, यस। ये कॉन्सेप्ट तो समझा, दैट डिजायर्स एंड प्रारब्ध वासना। तो दूसरा एक जो मीनिंग मैं समझता था प्रारब्ध का, वो ये था कि प्रारब्ध मीन्स जो मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है, आई एम लिविंग माई डिजायर्स, आई एम एग्जॉस्टिंग माई डिजायर्स, आई एम क्रिएटिंग ऑल्सो डिजायर्स, but there is something good happening to in my life, there is something bad happening in my life, something very extraordinary happening in my life, जिसको हिंदी में भाग्य भी बोलते हैं। Whether that is also can be related to प्रारब्ध। हम जैसे बोलते हैं ना, प्रारब्ध की गति को कोई नहीं जानता। तो उस चीज का कुछ रिलेशन है जो मैनिफेस्टेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिजायर्स। तो प्रारब्ध इज समथिंग विच आई हैव गॉट एंड मेरा जन्म उस वजह से हुआ है, प्रारब्ध लेके आया। अब वो वासना के अंदर ना सब कुछ आ जाएगा, अच्छा बुरा, न्यूट्रल, इनडिफरेंस, बेस्ट एंड वर्स्ट, एवरीथिंग कम्स इन इट, सब कुछ। तो इट्स जस्ट वन वर्ड फॉर द होल ट्री। जैसे सीड देखो ना, बीज इतना छोटा सा रहता है, पर वो बीज में से इतना बड़ा झाड़ आता है, इतने सारे ब्रांचेस आते हैं, इतने सारे रूट्स, फुल फ्रूट्स आते हैं। कोई फ्रूट अच्छा रहता है, कोई पका हुआ रहता है, कोई कच्चा निकलता है, कोई गिर जाता है, बट एवरीथिंग इज फ्रॉम दैट वन सीड। So same way, whatever we experience, all has come from our prarabdha. But only difference for humans and animals is कि हमको प्रारब्ध के साथ एक पुरुषार्थ दिया हुआ है। पुरुषार्थ मतलब सेल्फ एफर्ट, कि मेरे जो प्रारब्ध की वजह से मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बुरा 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 बुरा, सेल्फ एफर्ट की वजह से मैं वो चेंज कर सकता हूँ। कुछ लोग क्या होते हैं ना, पुरुषार्थ को यूज ही नहीं करते, तो वो जो वासना लेके आए उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रहती। सेल्फ एफर्ट यूज करते टाइम भी आपके प्रारब्ध के प्रेशर के वजह से हो सकता है जिंदगी बदलने में टाइम लगे, लेकिन इफ वी कीप गोइंग ऑन यूजिंग आवर सेल्फ एफर्ट, आप आपके प्रारब्ध को कंट्रोल में रख सकते हो एंड यू कैन चेंज लाइफ फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं, जैसे हाँ, कोई चीज
किसी किसी को कोई होता है ना कि कुछ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, when he has been doing good but there's something happening in life which is just not expected, और तो हाँ, उसको डिजायर से रिलेट कर सकते हैं क्या? डिजायर इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर वासना. करेक्ट. डिजायर इज, हाँ, वासना डिजायर तो एक बार इंटरचेंज वापस के लिए पूछना. यूज कर रहे हाँ. हैं, लेकिन कोई चीज उसकी लाइफ में ऐसी हो गई, हम्म. वो भी क्या डिजायर से रिलेटेड मानेंगे क्या? वट एवर इज हैपनिंग इन वंस लाइफ. हाँ, तो वन प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर. वॉट एवर वी फेस इन आवर लाइफ, whatever it is, it's according to our vasanas, our desires. ठीक है, एक ये चीज. नाउ सेकेंड कंपोनेंट मैं लाऊंगा, थोड़ा और कंफ्यूजन होगा, दैट इज ऑफ कर्मा थ्योरी. करेक्ट. ठीक है, मैं प्रारब्ध और डिजायर्स लेके आया, लेकिन मैंने कर्मा भी किया है पहले. तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट में भले ही मेरी डिजायर बहुत अच्छी है, दुनिया की सेवा की है, ये है वो है, पर कर्मा जो किया हुआ है उसका कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ेगा मेरे को. सेम पॉइंट आई वाज ट्राइंग. तो वही, तो वो आएगा. उस वजह से आई मे नॉट फेस व्हाट आई वांट टू फेस. देन दिस सेल्फ एफर्ट कम्स कि ओके, व्हाट एवर हैपेंड नाउ यू चेंज. तो ऐसा. हाँ वृंदा जी, आप कुछ बोल रहे थे. No, I was just wanted to know what Mhm. happens to the 900 rupees which is still in the Samhita. अच्छा. This if you added, this will get added to it. No, so Yeah. it's still there, you know. Right. Doesn't, I thought you can have another birth or as another person from that. So that's so. हाँ, so what will happen is that 900 now, it will make you take birth again and again. That's what. जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता. अब हो क्या रहा है लाइफ में कि क्योंकि हम अगर समझो स्पिरिचुअल स्टडीज नहीं करेंगे, तो वो 900 ना 9000 बन जाता है. उतने सारे वासनास या इच्छाएं मैंने पैदा कर ली, अब 9000 हो गई तो मेरे को उतने ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे. तो वो बात है, पर वो अपने आप कभी कम नहीं होंगे. वो बात भी है कि वो रहेंगे ही रहेंगे, तो मेरे को ही उसको एग्जॉस्ट करना है. तो आप लोग के पास ऐसा कुछ है, अगर बहुत पैसा पड़ा हुआ है तो मुझे दो, मैं एग्जॉस्ट करूंगा. ठीक है, वासना मत देना, पैसा दे दो. या और एनीथिंग एल्स. हाँ दिवेश. हम्म. हम्म. हाँ हाँ, उसको अवेयर होने के बाद भी तवे पे हाथ रखूंगा, गरम तवे पे, तो चटका तो लगेगा ना. हाँ, तो अब नहीं रखोगे तो अब गरम नहीं लग, चटका नहीं बैठेगा. पर कल रखा था मैंने और चटका बैठ गया था, तो वो स्किन ठीक होने टाइम तो लगेगा ना, वो जलन तो अभी भी होगी, है ना. हाँ. हम्म. हाँ. 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 हम्म. हाँ. ओ देखो, ये कुछ नहीं, कुछ चीजें हो सकती है कि आप इतना अच्छा कुछ करो तो वो नलीफाई करेगा. ठीक है, नलीफाई होते जाएगा. लेकिन समथिंग विच इज ऑलरेडी सेट इन मोशन ना, दैट विल स्टिल अफेक्ट अस. आप समझे. तो आपने लोन लिया समझो, हाँ लोन लिया बैंक से, तो लोन के साथ इंटरेस्ट भी आता है ना, बराबर. अभी आपने पैसा कमाया, आप लोन भर रहे हो, लेकिन लोन भर रहे हो तो कितना अमाउंट भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी चालू हो चुका था.
तो आप ज्यादा कमाओगे, अच्छा कमाओगे तो लोन जल्दी बंद कर पाओगे, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इंटरेस्ट मेरा 0 हो जाएगा, वो इंटरेस्ट के साथ मेरे को भरना पड़ेगा, बस वही बात है। हम्म। हाँ बोलो बोलो। हाँ। हम्म। 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 हाँ, नलीफाई करूंगा, करेक्ट। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन है। हाँ। हम्म। हाँ, राइट। कॉम्प्लिकेशन। कुछ। हाँ, पर्सन को भी व्हील चेयर पे भी है, करेक्ट। इसमें एक एक सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग क्या है कि मान लो अभी आपने कमाने लगे आप, और आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाया, ठीक है, और आपने वो लोन भर दिया, लेकिन आपने इतना ज्यादा कमाया कि वो लोन जो था वो आपके लिए एक चुटकी हो गया, ठीक है। होता है ना ऐसे, कभी कभी बहुत कमाया है तो वो फील भी नहीं हुआ वो लोन और इंटरेस्ट मेरे को। सेम वे आज की जिंदगी में अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हम अपने आप को डेवलप कर लेंगे मानसिक रूप से, मेंटली, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं फेस कर रहा हूँ ना अपने कर्मा के पास्ट, वो आपको छुएंगे भी नहीं। यू विल नॉट फील द कॉन्सिक्वेंसेस। वो हो सकता है, आप समझे, दैट यू हैव ग्रोन सो मच दैट यू आर नॉट एबल टू फील द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। दैट कैन बी डन। वो थोड़ा सा कुछ। नहीं, कंफ्यूज ही रहो, अच्छा है, क्लियर हो गया तो अच्छा नहीं है। हाँ शरद जी। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे जस्ट समराइज करूंगा अपने तरीके हाँ से, जस्ट टेल मी। प्लीज। तो अभी हम 2 अकाउंट कैरी कर रहे हैं। हम्म। I'm carrying one account of desires, हाँ। from one birth to other birth to other birth. हाँ। And the moment I exhaust desires, one part is clear. One. शरद जी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली ना 10 मिनट से कोई नॉक कर रहा है बार बार, लेट ठीक मी है। जस्ट चेक, सॉरी। All right, all right, all right. वो कोई पता नहीं क्या हुआ। सॉरी है। ओके, आई एम डूइंग क्लास, यू नो, या बिकॉज क्लास ऑनलाइन गोइंग। हाँ बोलो। Yeah, I was telling, जैसा मैं समझ पाया इस डिस्कशन में आज, कि I'm carrying two accounts with me. One was account of desires, another is account of my karmas, which converts into prarabdha, let's say. तो डिजायर्स का जो अकाउंट चल रहा है वो मुझे एग्जॉस्ट करना है, दैट इज द वन ऑब्जेक्टिव आई हैव। मुझे डिजायर्स धीरे धीरे डिसॉल्व से कि आगे इजी रहे। लेकिन प्रारब्धा का जो अकाउंट है वो मुझे क्लियर करना ही होगा, उसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक्सेप्ट दैट कि आई डोंट फील द इफेक्ट, एज यू सेड कि स्वामी जी के केस में उनको फील नहीं होता है, लेकिन वो प्रारब्धा के थ्रू जाना पड़ेगा। और जिस दिन वो प्रारब्धा का अकाउंट क्लियर होगा, देन ओनली, सो व्हेन बोथ द अकाउंट्स आर क्लियर, account of desire and the account of prarabdha, you attain that higher stage. हायर स्टेज इन मीन्स उसमें यू विल गेट फिजिकल समाधि। Okay. जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब गाड़ी लोन पे लेते हैं ना, तो आरसी स्मार्ट कार्ड जो होता है उस पे हाइपोथिकेशन लिख के आता है बैंक का, करेक्ट। तो इट्स लाइक लोन क्लियर हो गया, अब आपने अप्लाई किया है आरटीओ को फॉर अ न्यू स्मार्ट कार्ड।
अब वो प्रोसेस जब खत्म होगा ना, तब आपका वो न्यू स्मार्ट कार्ड आता है विदाउट रिटर्न इट। तो लोन क्लियर करना मीन्स आपने संचिता वासना खत्म कर दिए साधना से, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। लेकिन वो जो प्रोसेस का टाइम बचा है, उस प्रोसेस में अपन प्रारब्ध एग्जॉस्ट करके ही खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड वो खत्म हुआ तो वो इंसान को फिजिकल समाधि मिल जाती है, उसकी बॉडी भी छूट जाती है। हाँ, वैसा है। So that is the state of realization. Do we say that? नहीं, स्टेट ऑफ रियलाइजेशन कैन बी बिफोर ऑल्सो। Before also. कि मैंने लोन खत्म कर दिया, मैं तो क्लियर हो गया हूँ, लेकिन बैंक अपना प्रोसेस करेगी, चेक करेगी, सब करेगी ना। Okay. तो प्रारब्ध अपना मोमेंटम जो लेके आया है वो तो खत्म होने टाइम लगता है। हाँ, वो हो गया तो देन यू आर एक्चुअली फुल्ली क्लियर। Actually, ऐसे। clear. Thank you. तो शरीर को प्रारब्ध और जो कर्मा किए थे उसको ऑल एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। हाँ, राइट। तो हाँ, राम भगवान के जो वनवास हुए थे, Yes. so that was because of his earlier जन्म में कुछ था, प्रारब्ध वासना यू कैन से। हाँ, प्रारब्ध था, उसको उनको ये करना पड़ा। हाँ, you can say that प्रारब्ध, जो भी संत महापुरुष, they all have to go through so many things. It's like already acquired vasanas. ये भी तो सकता है वो ठीक करने के लिए। वो तो in the हाँ, process. मुझे क्या? पर ये भी तो हो सकता है वो कुछ ठीक करने के लिए आए, जैसे राम जी आए थे, उन्होंने जो दुख भोगे, बट वो कुछ उनको रावण को मारना था, वो सब करने के लिए आए थे। हाँ, करने के लिए उन्होंने। राइट। तो अभी देखो, हमको क्या रखना है ध्यान कि हम ना दो कॉन्सेप्ट हमको मिक्स नहीं करना है। तो एक साइड से हम ये सीख सकते हैं कि अच्छा, ये लोग ने फिर से अवतार लिए ताकि धर्म का एस्टेब्लिशमेंट हो, और क्या कहते हैं, वर्ल्ड को सिखाने के लिए, हमको कुछ मैसेज देने के लिए। ये कर्मा और प्रारब्ध के कॉन्सेप्ट में अगर हम लाएंगे तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ओके, वो सेल्फ रियलाइज थे, मोक्ष मिल गया था, लेकिन फिर भी कुछ प्रारब्ध बाकी थे, तो वो फेस कर रहे हैं सिचुएशंस। तो उससे वैसे अलग डिस्कशन रखना है, नहीं तो फिर वो ये हो जाएगा। हाँ, Correct. ठीक है, तो हम वर्स 4 पे आ जाएं। तो हम लोग चौथा श्लोक लेंगे, पेज 387 पे है, 4th अध्याय और 6th अध्याय, 4th वर्स। तो ये वर्स कौन प्रेजेंट करने वाले हैं? ओके, यस। A man is not attached either to sense objects or actions and has renounced all sankalpas, here it means thoughts, then he is said to be established in yoga. Continuing the line of thought from the preceding verses, Krishna explains when and how a person can claim mastery over yoga. A person is well established in yoga when he detaches himself from sense objects and actions and renounces the desires, meaning sankalpa, for them. People all over the world are possessed and obsessed with endless desires. These desires incessantly pressurize them to acquire objects and beings of the world and enjoy them. Their organs of perception perennially pursue the sense objects, while their organs of action engage themselves in the multifold activities in the world. As a result of their continual and long indulgence in perception and action, they develop a clinging attachment to them. They become enmeshed and entangled in the affairs of the world. The first sign of spirituality in a person appears when his desires change their direction from the outer world to the inner self. That marks the beginning of the practice of yoga, the union with the self. When he continues his pursuit of the self, his worldly desires drop off and he develops detachment from sense objects and actions. Such a person, free from desires and detached from perception and action, remains rooted in yoga.
So, continuing with whatever we discussed today, I kind of try to understand verse 3, 4, and 5 together in continuation. Verse 3 talks about two things: one who is wishing to master yoga, trying to master, and one who has already been established. So, one who wishes to master can exhaust his bulk of desires through karma yoga. So, karma yoga is a particular way of doing karma. And one who is already established in yoga, for him, meditation or silence is a good idea. That's what I understood in verse 3. Now, karma yoga definition is clearly given, and I have kind of enlisted it. How will you know whether you're doing karma yoga or not? First is there should be no ego attached. It's not I, me. It's for a higher cause, higher purpose. Even at the smallest level, we can take it a little higher, whatever we are doing. And there should be a spirit of service and sacrifice involved. And we focus on the process, not on the result. And there is detached dispassion, giving true value to what it is, basically. As Girish Iyer always used to say, that money means barter for getting something. It's money is not wow, it's not money as in money, so whatever. Right. And you have to offload your bulk of vasanas thus. And that is the vasanas will get slowly exhausted in this pattern of working of karma yoga. This is verse 3. Now coming to verse 4, which is continuation of verse 3 would be, it says that now you're talking about how you will be able to establish in yoga, be established in yoga. So one, what is the path? The path is that you have to be not attached to the sense objects and to your actions. My question is, actions meaning not attached to action, meaning does that mean not that is the same thing? Focus on process, not on result, detached from the fruit of action. Does that mean be detached from action? This is my query here. I have a doubt. One who has renounced all sankalpas. So then he is truly established in yoga. This is verse 4. So Krishna is talking about being established in yoga. How? The know-how. So this is what I got from the Right. verse. I don't know. Yeah. So कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा पहले, जो भी पारोमिता ने पूछा है उस पे? मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ, यस। ये जो फोर्थ वर्स है, इसमें मेनली जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें ये है कि ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा बताया गया है कि कौन रियली इस जर्नी पे आगे जा पाएगा। तो so what they're trying to tell कि most of us are indulged in outside world and we are trying to acquire, and whatever we acquire, we try to live that. We try to enjoy that. So when he says कि you withdraw from actions, the question which has been just asked, कि आप actions से और objects से withdraw करिए, इसका मतलब ये है कि जो outwardly चीजें हैं, जिनके acquisition के लिए हम काम करते हैं, उन चीजों से withdraw करना है, and then we have to see, realize कि पहले जब तक हम inwardly देखेंगे नहीं, तब तक हम इस ध्यान या meditation के process में जा नहीं सकते। इसमें just एक मैं छोटा सा example दूंगा। In the last class I was attending at Mumbai, Vinay had come. Offline, yes. There was a very good discussion on this particular path, on this particular thing, that how to really get into meditation. वहाँ पर उसने एक story बताई थी. I'll just share that story. Please. He said that when Vasco da Gama wanted to, he's like he discovered India and he came. So when he was, तो पहले उसने सोचा he was in all the comforts of life. Then he thought there is something beyond the ocean. There's something. First he realized there is something beyond the ocean. Then he took a boat and he sailed through without really being given any guarantee that there will be something beyond. But he took the journey, believing that there could be something. With that conviction, he started sailing and he reached. Right. So same thing, that boat is like meditation. So first you have to realize that there is something beyond what you see. Ocean means the worldly things. You have to see there is something beyond.
then you take that boat of meditation without any guarantee from anyone. You may reach, you may not reach. And then there are chances, if you take it, you may reach to some extraordinary place. तो वो extraordinary जगह जो है वही realization या inner बोलते हैं ना, when you look towards inner, पहले हमको realize करना चाहिए कि कुछ inner है, तब ये meditation में जाएंगे, और जब meditation लेंगे तब वहां पहुंचने की संभावना है। एक पॉइंट और बोला था उसने, वो भी मैं बोलना चाहता हूं। नहीं प्लीज। यस पॉइंट इज कि उसने जब जर्नी ली तो बोट जा रही थी, एक चीज उसके कंट्रोल में फिर भी नहीं थी। वी कुड नॉट आंसर दैट। इज इट कि उसके कंट्रोल में ये नहीं था कि विंड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर विंड का डायरेक्शन उल्टा होता तो वो इंडिया नहीं पहुंचता था कभी। इसका मतलब ये है कि नेचर भी सेलेक्ट करती है कि किसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, किसको नहीं होगा। So you put your effort, you start a journey towards your inner soul. You may reach, you may not reach. Correct. Nice. शिशिर जी, तो इसमें मुझे एक चीज थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये जो चेंज करने के लिए बोले, तो दैट ग्रेजुअल डायरेक्शन हैज बीन टॉक्ड अबाउट, कि आप कहीं भी मुड़ना चाहोगे तो आप सडनली नहीं मुड़ पाओगे। तो अभी आपके एक्सटर्नल एक्सट्रोवर्टेड आप हो, एक्सटर्नल के टुवर्ड्स आपका इतने अट्रैक्शंस है, उसको इनवर्ड करने के लिए मतलब आप सेल्फ रियलाइज नहीं हो पाओगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट कमिंग, सो दैट ये मुझे अच्छा लगा। तो ये इनवर्डनेस धीरे धीरे डेवलप करो, तब जाके आगे जाके हो पाएगा। आगे जाके कमिंग टू द वर्स, अभी देखो, सेंस ऑब्जेक्ट्स से लगाव मत रखो, डोंट बी अटैच टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये हम जनरली समझ सकते हैं कि आपने गाड़ी खरीदी, आपने कोई महंगा वास खरीदा, आपने घर खरीदा, इनको अगर मैं लगाव रखूंगा तो इन चीजों को कुछ अगर हुआ तो मेरे दिल को भी होगा। जैसे बचपन में खिलौने को कुछ होता है तो वो बच्चे को भी कुछ होता है। तो ये इजी है, हम समझ सकते सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना। ओके पारोमिता। अब दूसरा है एक्शंस को अटैच होना, मतलब क्या। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, एक रिसोर्ट है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ऑल एवरी डे, है ना। अब मैं एक एक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या एक्शन है कि मैं ये फिलॉसफी शेयर कर रहा हूँ, ये एक्शन हो गया। अब इससे लगाव रखना, इससे अटैच रहना, आप लोग बताओ क्या रहेगा। मतलब अगर if they are not taking your class seriously, then you may feel bad कि I've come for this, not listening, and they're not following. Bad, correct, agitation रहेगा। तो ये हो रहा है मतलब अटैच टू एक्शन, है ना। फिर मान लो मैं जाता हूँ, वहां कोई नहीं है, तो मैं अटैच हूँ अपने एक्शन से, अपने कर्म से। तो वैसे ही सेइंग कि तुम एक तो जो चीज तुमको एंजॉयमेंट देती है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये दुनिया की चीजें, उससे लगाव मत करो, क्योंकि वो एक दिन है, एक दिन नहीं। और तुम जो कर्म भी कर रहे हो, तुम नहीं बोल सकते कि मेरा तो बहुत ही अच्छा सोच था, गुड इंटेंशन था, मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया। जो होएगा उससे कोई लगाव नहीं, एक्शन से अटैचमेंट नहीं, ऐसा। अभी उसके आगे हैज रिनाउंस्ड ऑल संकल्प। यहाँ पे इस श्लोक में संकल्प का मतलब है कि बार बार जो विचार आते रहते हैं, मेरे को ये पाना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वैसा करना है, उसको डिटैच, मतलब यू आर नॉट एंटरटेनिंग सच थॉट्स। उसका भी उदाहरण बताता हूँ। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई दुबई से, कोई यूएस से, कोई इंडिया में बहुत बड़ा है, कोई कुछ है। अब अगर वो मिलके जाते हैं मेरे को, हम सेशन करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, अगर वो बोलते भी हैं कि हम लोग यहाँ सेशन करेंगे, वहां सेशन करेंगे, ठीक है। अब वो जाने के बाद या वो जाने के पहले भी अगर मेरा मन उधर दौड़ रहा है, इफ माई माइंड इज गोइंग देयर, दैट मीन्स मैं संकल्प, आई हैव गॉट इनटू ऑब्सेशन फॉर दिस। सो गीता पढ़ाने का ऑब्सेशन हो या पैसा कमाने का ऑब्सेशन हो, ऑब्सेशन प्रॉब्लम करेगा। तो उसको रिनाउंस करो, मतलब वो टाइप के जो विचार आते हैं, वो घोड़े दौड़ते बोलते ना, उसको रिनाउंस करना है अपने को। बिकॉज एनीवे अगर वो होना है वो होएगा।
तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, रिनाउंस योर थॉट्स, संकल्प मतलब डोंट गेट इनटू द क्रेविंग फॉर एनीथिंग, देन यू आर एस्टेब्लिश्ड समवेयर इन कर्मा भक्ति ज्ञान। योगा मतलब 3 चीज, कर्मा भक्ति ज्ञान। तो ऐसा हो गया, मान लो आपको बच्चे होते हैं और बच्चा हुआ और बच्चा इतना होशियार नहीं है, बच्चा हैंडीकैप्ड है, तो संकल्प होता है कि यस उसको ठीक करना है, उसको जो कर सकता हूँ मेरे को करना है, पर मैं ऑब्सेस हो गया वो चीज को लेके, मतलब मैं अटैच हूँ अपने एक्शन से। कौन सा एक्शन? टू बिकम अ फादर, टू बिकम अ मदर, ये वाले एक्शन का जो रिजल्ट आया उससे मैं लगाव करता हूँ, इसलिए मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ अभी उस चीज से। तो एक है प्रेजेंट कर्म में जो मिल रहा है उससे अटैचमेंट, एक जो उससे आने वाली संभावना है उससे अटैचमेंट। इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम किसी से भी लगाव मत करो, तुम बस करते रहो, तभी तुम एक साधु मतलब तुम एस्टेब्लिश होगे किसी योगा में, कर्मा भक्ति ज्ञान में, और ऐसा ही इंसान आगे बढ़ सकता है साधना में। तो ये एक्सप्लेन भी किया है ना सेकेंड पैरा में, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर पोजेस्ड एंड ऑब्सेस्ड विथ एंडलेस डिजायर्स, दैट इज संकल्प इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और नेक्स्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट पैरा है इस श्लोक का, कि द फर्स्ट साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज when the person changes the direction of desire from outside to inside। कि मुझे सुधरना है, मेरे को बाकी का कुछ नहीं पता, मैं अपने आप को शांत करना चाहता हूँ, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, मैं मेरे कंप्लेंट्स कैसे मैं उनको उसको सोल्यूशन दूं, या कैसे ऐसा बनूं कि जिस दिन मेरे को ऐसा आ जाए कि मैं अभी को भी कोई कंप्लेंट नहीं रही इस दुनिया को, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। दूसरों को तो इसमें पुश करूं, दूसरों को इसमें ढकलूं, दूसरों को शांत करूं, वो सब रहा तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ऐसा। तो दैट साइन when you change your desires direction inside instead of outside marks the beginning of practice of yoga, ऐसा। तो ये है वर्स 4, आई थिंक आज हम यहाँ तक ही ले पाएंगे। वर्स 5, 6, 7 अलॉटेड है ना, तो 5 इज फॉर संदीप जी, आज है नहीं, वो नेक्स्ट वीक लेंगे। 6 और 7 कौन कौन है? एनीवन रिमेम्बर्स? 6 मेरा ओके, 6 शुभदीप जी है नेक्स्ट वीक, 7 मेरा है। शिशिर जी है। ओके ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू, हरिओम, हैव अ ग्रेट वीक। Thank you. Hari Om. थैंक यू। Recording stopped.